Vishal sir, please start the session. ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. અત્રે ઉપસ્થિત પ્રાધ્યાપક, અધ્યાપક, શિક્ષકગણ તથા વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હું સ્વાગત કરું છું. એસએસઆઈપી બુટ કેમ્પ 2021ના છેલ્લો સેશન આપણે સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. કદાચ બની શકે કે આ સેશન પછી આપણે 1 વર્ષ પછી મળીશું. તો આજનો આપણો સેશન આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. આજના સેશનનો ટોપિક છે ઇનોવેટિવ ટોય મેકિંગ વિથ રિક્વાયર્ડ સ્કિલ્સ. અને આજના સેશન માટેના એક્સપર્ટ છે ડૉક્ટર કશ્યપેલ મોકરિયા, મિસ્ટર ગોરધનભાઈ પટેલ અને એમના પુત્ર મિસ્ટર હિતેશજી પટેલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સેશન સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં હું તમને એક વાત કરવા માગું છું. તમે અત્યારે પણ ગારાના રમકડા બનાવતા હશો, માટીના રમકડા બનાવતા હશો, કંઈક ને કંઈક પેપરમાંથી બનાવતા હશો, અથવા તો તમે કંઈક તૈયાર રમકડા શોપમાંથી પરચેઝ કરી અને રમતા હશો. તો તમે જે શોપમાંથી રમકડા લો છો, તમે ક્યારે વિચાર્યું છે કે એ તમારું રમકડું એ ભારતમાં બનેલું છે કે ચીનમાં બનેલું છે? તો તમે એક વસ્તુ માર્ક કરજો કે મોટાભાગના રમકડાઓમાં હંમેશા મેડ ઇન ચાઇના લખેલું હોય છે. આવું કેમ? આપણી પાસે આટલા બધા વિચારો છે, આટલું બધું યુવાધન છે, આપણે આટલા બધા પ્રયત્નશીલ છીએ, છતાં પણ આપણે એક નાના નાના રમકડામાં પણ ચાઇના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ રહેવું પડે છે. તો સૌપ્રથમ આ વિચાર આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આવ્યો અને એમણે શું કર્યું તો કે ચલો આપણે જેમને પણ કંઈક નવા રમકડા બનાવવાનો આઈડિયા આવે છે એમને આપણે પ્રમોટ કરીએ અને મેડ ઇન ઇન્ડિયાવાળા રમકડાથી આપણી નવી જનરેશન મોટી થાય, એવું ઇનિશિયેટિવ એમના તરફથી લેવામાં આવ્યું. તો હું પહેલાં સૌપ્રથમ હું ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીશ ગોરધનભાઈ પટેલને, કે જે જન્મથી બહેરા અને મૂંગા છે, છતાં પણ રમકડાઓની દુનિયામાં એનો કેટલો મોટો ફાળો છે. વાંસમાંથી એ રમકડા, ફોટો ફ્રેમ, વોટરફોલ, નાઇટ લેમ્પ, મોબાઈલ સ્ટેન્ડ, અરીસો, દિવાલ ઘડિયાળ, આવું બધું ફક્ત વાંસના ઉપયોગથી બનાવે છે. અને ઘઉંની સળીમાંથી દેવદેવતાની છબીઓ, એફિલ ટાવર, આવું બધું પણ બનાવે છે. આપણા સેકન્ડ સ્પીકર છે ડૉક્ટર કશ્યપેલ મોકરિયા. ડૉક્ટર કશ્યપેલ મોકરિયાએ અત્રેની કોલેજમાં હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ તરીકે ફરજ બજાવે છે. અંદાજે 20 વર્ષનો આચાર્યશ્રી તથા અધ્યાપક તરીકેનો શૈક્ષણિક અનુભવ ધરાવે છે. જેમનું ગ્રેજ્યુએશન ગુજરાતની એક નામાંકિત સંસ્થા SVNIT સુરતમાંથી થયું છે. એમનું માસ્ટર ડિગ્રી ફરી એવી એક નામાંકિત સંસ્થા BVMમાંથી તથા એમનું PhD SVNIT સુરતમાંથી છે. એમને રાજ્ય કક્ષાના SSIP અને ઇનોવેશનમાં કહી શકાય એવા 3 વખત એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયેલા છે. તો આવા એક સ્પીકર આપણી સાથે છે કે જે આપણને ટોય માર્કેટિંગ વિશે ચર્ચા કરવાના છે. તો હું ઇન્વાઇટ કરીશ ડૉક્ટર કશ્યપેલ મોકરિયાને કે જે આપણને ઇનોવેટિવ ટોય મેકિંગ વિથ રિક્વાયર્ડ સ્કિલ્સ વિશે માહિતગાર કરશે. પ્લીઝ સર, ડૉક્ટર કશ્યપેલ મોકરિયા. Thank you, Vijay sir, for inviting me. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે જ્યારે પાછળથી યુટ્યુબ લાઈવમાં આ સેશન જ્યારે જશે તો ગુજરાતના કે દેશના કોઈ પણ ખૂણેથી જ્યારે આ સેશન જોવામાં આવશે ત્યારે બહુ અપ્રિશિએટ કરવામાં આવશે. જે ગોવર્ધનભાઈ જે છે, હિતેશ્વરના ફાધર જે છે, એ જે છે એમને કુદરતે 2 વસ્તુ નથી આપી, બરાબર. હું બહુ સેન્સિટિવ છું એમના પ્રત્યે, એમની કામગીરી પ્રત્યે. એ બોલી નથી શકતા, એ સાંભળી નથી શકતા, બરાબર છે. પણ ભગવાને એમને જે દેન આપી છે, જે રમકડા બનાવવાની જે દેન આપી છે, આજના સેશનમાં હું એમના બનાવેલા અમુક રમકડા તમને હું પેશ કરીશ. અમારા વિદ્યાર્થીઓ સાથે અમે સ્ટાર્ટઅપ સૃજનમાં સાથે અપ્લાય કર્યું છે અને તમે 100% જોઈને આને એપ્રિશિએટ કરશો આ વસ્તુની. બીજી વસ્તુ કે જે હિતેશ્વર છે એ એમનું હું ઇન્ટ્રોડક્શન એક આપી દઉં કે SS ગાંધીમાં જ્યારે હું હતો અહીંયાથી વલસાડ પહેલાં, ત્યારે એ સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સનું ચાર્જ સંભાળતા હતા, જ્યાં રોબોટિક્સ, પ્રોસેસ ઓટોમેશન, PLC, CAD આવા કેટલા ઇનોવેટિવ કાર્યમાં અને ઇનોવેટિવ લેબોરેટરી, જે આખું સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ જે છે એ સંભાળતા હતા ડિઝાઇન ટેક વતી. અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઓટોમેશનમાં એમની કામગીરી અભૂતપૂર્વ છે. રમકડાના ઓટોમેશનમાં પણ એમની કામગીરી બહુ અભૂતપૂર્વ છે.
એટલે આ સેશનનો ફ્લો આ રીતે રહેશે કે પહેલા હાફમાં જે છે હું તમને નાના નાના રમકડા કઈ રીતે બનાવી શકાય એ બાબતે માહિતગાર કરીશ અને સેકન્ડ હાફમાં આપણી પ્રશ્નોત્તરી હશે. જેવી હું હિતેશ સર સાથે ને એમના ફાધર સાથે પ્રશ્નોત્તરી ચાલુ કરીશ તો હું માલન સરને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે રિસ્પેક્ટેડ પ્રિન્સિપલ સરને ઇન્વાઇટ ત્યારે કરી લે, એટલે 10 મિનિટ પ્રશ્નોત્તરીમાં સાહેબ હાજર હશે ત્યાર પછી એમનું સીધું ડાયરેક્ટ અંતે વક્તવ્ય છે આ બૂટ કેમ્પના કાર્યક્રમ વિશે. સો બિલીવ મી કે આ સેશન જે છે આપણે થોડુંક આજે આ વરસાદના માહોલના કારણે અને થોડા ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમના કારણે આપણે થોડું લેટ જઈ રહ્યા છે, પણ જે પણ લોકો આ સેશન જે છે એ પાછળથી નિહાળશે, whomsoever the people, whether it is a teacher, principal or student who will see this session, they will be blessed. Yes, we have got something. We have got something in this 7-day session, and obviously this session was also exceptional. So I'll be just sharing my screen. Just give me a second. So આજનો સેશન છે इनोवेटिव टॉय मेकिंग ऊपर. आज का हमारा सेशन जो है वो इनोवेटिव टॉय मेकिंग के लिए हमें क्या क्या स्किल चाहिए तो उसके ऊपर है. सो पहले मैं स्किल की बात करूंगा. ये स्किल के चलते हुए मैं आपको मेरे प्रेजेंटेशन में 2 बेहतरीन चीज दिखाऊंगा कि स्टूडेंट कैसे काम कर सकते हैं. अगर मान लीजिए कि किसी स्कूल के स्टूडेंट को काम करना है तो वो ये क्षेत्र में कैसे काम कर सकते हैं. फाइन. सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन. मैं प्रेजेंटेशन का थोड़ा फ्लो आपके लिए मैं बदल रहा हूँ और ये सेशन में और आपको क्या जानकारी मिलेगी. तो हम जैसे बताते हैं कि हम मान लीजिए कि स्टार्टअप के लिए किसी के सामने प्रेजेंटेशन करते हैं तो पिछले एक सेशन कैसे करते हैं वो भी हम करते हैं. तो आप देखिए ये सेशन का नाम जो था मैंने वंडर टॉयज दिया है इन टर्म्स ऑफ टॉय इनोवेशन. फाइन. तो हमारे बच्चों ने वेस्ट फ्रॉम द बेस्ट और एग्रीकल्चर और फार्मिंग टॉयज में कैसे पार्टिसिपेट किया है ये चैलेंज में. गोवर्धन भाई और हितेश सर साथ रखे. Yes sir. Yes sir. Just a minute. Will you please hide the pop-up window? Just a minute sir. Yes, it's fine. Now it's okay. Yes. Okay. Thank you sir. Fine sir. Great. Thank you. So this is the team leader. Even school students can have such type of team and team leader with internal mentor and external mentor. Now before moving ahead with basic introduction of what basically is toy making, I am directly pitching one problem and then I'll be playing one video. Say you can see this circuit. So जुगाड़ इनोवेशन कैसे कहते हैं, टेक्निकल इनोवेशन कैसे कहते हैं, कौन सा इनोवेशन जो है वो लंबा चलेगा, वो ड्यूरेबल रहेगा, और हम चाइनीज प्रोडक्ट को या सिमिलर जो प्रोडक्ट जो टॉय इनोवेशन में लीड कर रही है तो हम उसको हम कैसे compete कर सकते हैं. मान लीजिए कि अगर 8 से 12वीं के बच्चे जो है जिनको 11वीं या 12वीं में सेमीकंडक्टर आता है तो ये एक सर्किट बनाई है कि कोई इंसान कहीं आपके घर पे या आपके प्लेस पे अगर आप नहीं हो, अगर वो अंदर वो पेरिफेरी में आ जाता है तो वो सर्किट अलार्म कैसे देगा. तो मैं ऐसा नहीं कहता कि ये एकमात्र कंसेप्ट है. ऐसे आपने जो स्कूल लेवल में पढ़ा है उसमें से आप बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट रह के आप इसमें आगे कार्य कर सकते हैं. सो बेसिकली बर्गर अलार्म क्या रहता है कि मुझे ऐसा है कि कोई किसी सर्किट को इंटरफेस करता है तो मुझे एक अलार्म या साउंड चाहिए. तो इसमें दो है, टॉय का टॉय भी हो गया और सर्किट जो है वो आपको खिलौने के जैसा काम भी करेगी. इसमें कोई आगे काम करना चाहता है तो एक डेडिकेटेड कंट्रोलर रह के उसमें ये भी पिकअप कर सकता है कि ऐसे कितने आदमी क्रॉस हुए थे तो काउंटर आपका काउंट भी करके देगा. सो what is basic of this circuit? LM358 is used as a comparator in this project. When the system is powered on, the IR transmitter or IR LED emits infrared light. This light falls on the surface of the photodiode as it is conducted in reverse bias fashion. When the light falls on it, conducts and current flows through it. Since it is connected to non-inverting terminal of the op-amp, output of the op-amp will be high. So again, I'm repeating, when the light falls on the surface of the photodiode as it is conducted in reverse bias fashion, when the light falls on it, it conducts and current flows through it, and due to the non-inverting terminal. Non-inverting कैसे बताते हैं कि यहाँ पे जो है ये प्लस टर्मिनल है और एक माइनस टर्मिनल है. तो अगर 5वें टर्मिनल नंबर 5 पे आउटपुट टर्मिनल नंबर 6 से ज्यादा होगा तो आउटपुट हाई मिलेगा, और टर्मिनल नंबर 5 पे आउटपुट टर्मिनल नंबर 6 से कम मिलेगा तो आउटपुट लो मिलेगा. नाउ अगेन गोइंग बैक टू द फंक्शन, when the light falls on it
as it is conducts and current flows through it, since it is connected to non-inverting terminal of the op-amp, output of the op-amp will be high. अब आप देखिए कि यहाँ पे इस पे लाइट फॉल हो रही है आया ट्रांसमीटर से, मतलब यहाँ पे बीच में कोई दुविधा नहीं है. तो अगर बीच में कोई दुविधा नहीं है तो वो केस में यहाँ पे इसका आउटपुट जो है हाई जाएगा. अभी यहाँ पे मान लीजिए 5 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे 3 वोल्ट, मतलब आउटपुट हाई का है. लेकिन आउटपुट हाई कौन से टर्मिनल पे मिला? ऑपरेशनल एम्पलीफायर के 7 नंबर पे मिला, जो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है. सो आपका बजर नहीं बजने वाला है. व्हेन somebody interrupts here, in that case the things will be reverse. At that time ये फोटो डायोड पे जो प्रकाश पड़ रहा है वो बंद हो जाएगा, यहाँ 5 नंबर पे आउटपुट लो जाएगा, ओवरऑल आउटपुट लो जाएगा. सो आपने 12th में या 8, 9, 10th में पढ़ा है कि किसी भी चीज को ऑन करने के लिए अगर एसी सप्लाई है तो फेज चाहिए और न्यूट्रल चाहिए, और अगर डीसी सप्लाई है तो एक पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए. सो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, और ये बजर साउंड करेगा. तो वो बजर इंडिकेट कर रहा है कि यस, यहाँ पे कोई अंदर इंटरसेप्ट हुआ है, आपके रूम में आपकी जानकारी के बगैर कुछ इंटरसेप्ट हुआ है. दूसरा कंसेप्ट. सो आज मैं क्या करने वाला हूं स्कूल स्टूडेंट्स, मैं आपके जो स्कूल में जैसे साइंस फेयर होते हैं वगैरह चीजें जो होती है, उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो. तो ऐसे मिनिमम 300 प्रोजेक्ट है जो मैं आज जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट है उनके साथ में शेयर करने वाला हूं. सो मैं आपको बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आज दे रहा हूं कि जिसमें आप अपने जो भी स्कूल में जब भी साइंस फेयर हो या कहीं भी इवेंट हो, आप इतनी बेहतरीन एप्लीकेशन लेके आएंगे कि जो आपको आगे चल के बहुत ही काम आने वाला है. सो द हॉट वाटर पाइप फ्रॉम द वाटर गीजर ऑफ योर बाथरूम में बस्ट इफ इट इज गेट ओवरहीटेड and it is left unattended. This circuit monitors the temperature of the water pipe. If the temperature of the pipe goes above the certain limit, it flashes an LED. Yes, obviously, अगर ये LED को आपको सप्लाई देना है, सीरीज ऑफ LED को, तो यहाँ से पॉजिटिव मिलना चाहिए और यहाँ से नेगेटिव मिलना चाहिए. लेकिन वो कौन डिटेक्ट करेगा? वो यहाँ पे थर्मोस्टेट डिटेक्ट करेगा. सो जो स्कूल स्टूडेंट्स या जो है वो 2 तरह के खिलौने बना सकते हैं. एक जो टेक्निकल डोमेन पे बेस है, वो इस टाइप के खिलौने, और एक जो है वो तो टेक्निकल नहीं है, उस टाइप के खिलौने वो बना सकते हैं. सो उसके चलते मैं आपको 2 वीडियो भी शेयर करूंगा. अब देखिए, फिर हम बात करते हैं कि जुगाड़ क्या होता है, इनोवेशन क्या होता है. फाइन, कौन सा चीज जो है वो मार्केट में चलने वाला है, कौन सा चीज जो है मार्केट में नहीं चलने वाला है. सो स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, आई विल बी जस्ट प्लेइंग द वीडियो फॉर यू. 2 वीडियोस आई वांट टू प्ले विथ यू. મોકળિયા સર. યસ સર. સર વિડીયોનો અવાજ નથી આવતો સર. હા, મારા ત્યાંથી સર વોલ્યુમ ફૂલ છે, એટલે જે બેસ્ટ થઈ શકે જો હું અહીંથી કરી રહ્યો છું અત્યારે. ફાઇન. ઓકે, શ્યોર સર, શ્યોર સર. ફાઇન, હું એક્સપ્લેન કરું છું. So you can see here, this is basically, I'm just explaining, this is basically a pocket torch LED. Fine. So this is basically a pocket torch LED, and say my volume is 100%, my speaker was tested. So inbuilt જે video છે એનો અવાજ નથી એટલા માટે આવે છે. So you can see here this LED of 1 watt, how they will be placing here, and how they will be making a torch light which can be used as a toy for a kid, and it can be used as your डिवाइस ऑल्सो. अगर रात को अगर लाइट चला गया, आपका सप्लाई चला गया वहां से, तो वो कैसे कर सकता है. तो ये लिथियम आयन बैटरी है. तो स्टूडेंट इसमें टेक्निकली क्या उनको जानने मिलता है कि कितना वोल्ट होना चाहिए, बैटरी का कितना एम्पियर आवर होना चाहिए. मान लीजिए कि 1 एम्पियर आवर का बैटरी है, तो 1 घंटे तक 1 एम्पियर आपको करंट देगा वो. तो आपका जो डिवाइस है, टॉर्च लाइट का जो बल्ब है, उसका करंट कितना है. सो जो हम इक्वेशंस वगैरह जो है वो हम जहां पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, तो उसको अभी हमें अप्लाई करना आ जाता है यहाँ से कि हाउ विल अप्लाई इट. सो स्टूडेंट, आई एम शोइंग सम इनक्रेडिबल थिंग्स टू यू एट प्रेजेंट. अब सी ये जब काम करेगा तब कैसे दिखेगा. ये सेशन थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं थोड़ा उसको मैं मूव कर रहा हूँ. फाइन, बेसिकली वीडियो का ही आवाज लो है, अदरवाइज फ्रॉम माय साइड इट इज
a full volume. So you can see here how that it is prepared. Bulbs are connected, the packing is there, the switch is there, and how finally it looks like this. अभी इसके बाद मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, ये जब वीडियो प्ले होना हो जाए, शोल्डरिंग उसका हो जाए, दोनों पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव का लगा दिया अंदर, अब ये कैसे फंक्शन करेगा देखिए. Yes, this is the light, torch light. So now see, this was the torch light. Fine. So अगर कोई ऐसे ऐसे बताता है कि सर ये प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन है, तो SSIP में हम उसको क्या कहते हैं कि फर्स्ट नंबर 1, if your innovation is based some जुगाड़ और some material like this, then confirm it कि आपका ये प्लास्टिक का कैम का ड्यूरेबिलिटी कितना है, ये कितना टकेगा. क्योंकि जब आप उसको मार्केट में बेचने की बात करते हो तब लोग आपको पूछेंगे कि ये जो चीज है वो साहब कितने समय टिकेगी. आप जो 10 या 15 रुपए का प्रोडक्ट बताते हो, सर वो तो मार्केट में तो मिल रहा है 8 या 10 रुपए से, वो इससे भी ज्यादा ड्यूरेबल है. तो जब हम अपने प्रोडक्ट को बेचने की बात करते हैं तब वो क्या होना चाहिए, उसमें रीजनेबल कॉस्ट होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, वो एफिशिएंट होना चाहिए, उसका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यहाँ पे उसका कवर जो लगा है वो स्ट्रेंथ है. तो जैसे हम किसी आइडिया को लेके चलते हैं किसी इनोवेशन बनाने के लिए, तो वो प्रोडक्ट कितना चलेगा. चाइनीज प्रोडक्ट जैसा तो नहीं होगा कि लाया तो साइड में रख दिया फिर बाद में चलता नहीं है अभी 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद. तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो वन कंसेप्ट आई शोन यू विद द हेल्प ऑफ दैट योर सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स दैट यू विल बी स्टडीइंग इन स्कूल लेवल. सो उसमें से आप साइंस बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं और ये तरह के आप छोटे छोटे खिलौने कैसे बना सकते हैं, दोनों मैंने आपको दिखाया. वन मोर थिंग आई कैन शो यू, यू कैन सी हियर. ऐसे टोटल 10 वीडियोस हैं. ये पूरे वीडियोस जो है मैं आपको आज ईमेल करूंगा सबको. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. Then I'll be starting my presentation from the beginning. Because I want to say something related to the presentation. Say the wooden strip is taken, appropriate drill is done. Drill are of 2 types. One is known as a hand drill, जो आप जब प्रोजेक्ट में काम करेंगे तब, और सेकंड जो रहता है इलेक्ट्रिकल ड्रिल रहता है. मटेरियल के हिसाब से उसका बिट रहता है. Now see how the final product will be. How the final product will be. They have used
wooden blocks, they have used Fevicol, they have used this mortar for rotation. This is your final product. So it is just one type of robot. Now robot can be of so many types. You can use a technology. आप बेहतरीन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो और ये अभी ये लकड़े में से है, सो इसकी ड्यूरेबिलिटी कम रहेगी. बट आई जस्ट वांट टू शो that this is one of the jugaad based innovation like that. But if you want to do with a proper electronic circuit, you can build a robust robot. रॉबर्ट से आप कुछ भी करवा सकते हो. रॉबर्ट्स को आप उसको आप ऑपरेट कर सकते हो, मे बी वायरलेस. देन यू कैन इन नाउअडेज ऑटोमेटिक सोलर पैनल क्लीनिंग इज डन बाय रॉबर्ट. सो रॉबर्ट ही पूरे उसका साफ कर देता है, क्योंकि जो जगह पे मनुष्य वहां उतर नहीं सकता है सफाई के लिए, वहां आज के तारीख में ये रॉबर्ट काम करते हैं. सो मेरा शुरू का जो पोर्शन जो था उसका काम जो था वो आपको जगाने के लिए था. अब यहाँ से हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं कि टॉय इनोवेशन क्या जरूरी है और क्यों स्कूल में ये जरूरी है. सो टॉयज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज कल्चरल एम्बेसडर रिफ्लेक्टिंग 5000 years of Indian civilizations. Toys manufactured across the country reflect the cultural diversity of the country. India produces a wide range of toys from plastic, mechanical, soft plus और toys. ये soft toys क्या रहता है? आप जो रुई में से जो टॉयज बनाते हो उसकी ऑटोमेटिक मशीन आती है. आपको जैसा शेप बनाया, आप मान लो कि कोई बोलता है कि मुझे मेरे शेप का ही टॉय चाहिए, मैं कैसा दिखता हूँ, तो मुझे उस आकार में एक थैली बनाना पड़ेगा और वो थैली में मुझे रुई अंदर जो है वो मुझे पॉर करनी पड़ेगी. Board games, puzzles, educational games, metal and tin wood, battery operated toys. If you have a battery operated vehicle, obviously we have a battery operated toy also. Just like tractor is operated by battery, some other cars and all those things are operated by battery. Indian toys are made from diverse raw materials like plastic, wood, rubber, metal, textiles, etc. Toy industry in India has witnessed a lot of change over the last decade in terms of categories of toy innovation, eye-catching design and other aspects. Traditionally, toy sector is a labor-intensive industry. It provides tremendous employment opportunities to over 3 million workers, of which women constitute about 70% of the workers. The Indian toy industry is a major market for both domestic and international players. Owing to low penetration as well as growth in the size of the middle class, Indian toy industry has a bigger share of 0.5% of the global market. Fine, the Indian toy market, whose size is estimated at about 8,000 crore as on March 2013 and grow at a compound annual growth of 20% by 2015, only 20% of the Indian market is served by Indian manufacturer. Now, this is a pinch point that we want to concentrate. So, school students, ये कौन कर सकता है ये चीजें? ये 20% से 80% की जर्नी कैसे होगी? तो 20% से 80% की जर्नी तब होगी जब स्कूलों में इनोवेटिव टॉयज के कंपटीशन चलेंगे, जब अपने बच्चे जो है वो बेहतरीन टॉय बनाने लगेंगे, अपने बच्चे ये जानना वो आइडिया जनरेट करना चालू कर देंगे कि मैं ऐसे ये जुगाड़ बेस्ड इनोवेशन हो या टेक्निकल इनोवेशन हो, मैं उसको लेके बेहतरीन टॉय हम कैसे बना सकते हैं. फाइन. और अभी तक पेरेंट्स ने अपने स्टूडेंट्स के बारे में या अपने बच्चों के बारे में यही सोचा है कि कल उठ के ये एक्स जॉब पे जाएगा या गवर्नमेंट सर्विस करेगा, ये करेगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा है कि इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो बी एट योर बॉस होगा, बी एट योर ओन बॉस, उसके अंदर कितने लोग काम करेंगे, वो रेवेन्यू जनरेशन का देश का सबसे बड़ा माध्यम बनेगा. उसके अंदर में बहुत सारी फैमिली काम करेगी. इट विल नॉट ओनली गिव नेम एंड फेम टू हर और हिम, बट इट विल डू वंडर्स फॉर द नेशन. So these imports include fun gums, electronic toys, board games, etc. The Indian toy industry, which largely consists of small and medium enterprises, is caught in a strange paradox. It recorded double-digit growth over the last 5 years, and yet around 40% of the Indian toy manufacturing units have closed down. So the Associated Chamber of Commerce and Industry is used to term dragon effect, in which the Indian market is flooded with Chinese toys and Indian toy manufacturer are being decimated. So आप ये जो Chinese toys है उसके सामने आप कैसे टिक सकते हो? तो टिकने के बहुत सारे रास्ते हैं. मेजर रास्ता क्या है कि जब स्कूल स्टूडेंट्स अपने जो कंपोनेंट वो पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, तो उसकी एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, उस पर अगर फोकस करना चालू कर दे. इंजीनियरिंग स्टूडेंट और इंडस्ट्री साथ में मिल पे ऐसे इनोवेटिव कंसेप्ट पे काम करे तो वो दिन दूर नहीं है कि स्टार्टअप में अभी तो इंडिया बेहतरीन कर ही रही है पिछले सालों से, लेकिन आगे जाके भी इंडिया का ये डोमेन में नाम रहेगा. तो जब हम बोलते हैं ना कि हम चीजें बाहर से लाते हैं, तब हम चीजें बाहर एक्सपोर्ट करेंगे.
सो ये महीने में भी ये टॉय इनोवेशन सेशन का आज का सेशन जो है वो आपको बहुत उपयोगी है, क्योंकि न सिर्फ हम टॉय की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पिच डेक की, हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप की, हम बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट भविष्य में खुद के बिजनेस लेने वाले हैं, खुद बड़े एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं. They can do wonders to the nation. So according to the latest market report from IMRC, the toy market size in India was over US 1.75 billion in 2019. Market size is expected to grow to $3.3 billion by 2024, representing a strong growth of 15%. India has one of the largest population of the under age of 15 in the world. Thus, the toy industry in the country has always benefited from huge demand of wide array of both traditional and modern toys. तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक बात आपको कहना चाहूंगा, जब आप कोई चीज बनाते हो तो लोग क्या करते हैं कि पहले चीज बनाते हैं, बाद में मार्केट समझना चाहते हैं. ऐसा नहीं होता है. पहले हमें मार्केट का ट्रेंड समझना है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये चीज ये मार्केट के लिए कैसे फिट होगी. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि टॉयज में एज ग्रुप है 0 से 3 साल का, 3 से 6 साल का, 6 से 9 साल का, 9 से 12 साल का, 12 से 15 साल का. क्या आप 15 साल के बच्चों के लिए वो खिलौना दे सकते हो जो 4 साल के लिए बनाते हैं? नहीं. क्या जो स्टूडेंट जो बच्चे जो है गांव से बिलोंग करते हैं, उनको जनरली उनके यहाँ बैलगाड़ी रहती है, ट्रैक्टर रहता है, तो उनको वो सब चीजें अट्रैक्ट करती है. सिटी के बच्चे हैं, उनको थोड़ा बहुत ऑटोमेशन वाली चीजें कुछ हद तक अट्रैक्ट करती है. तो आपको मार्केट स्पेसिफिक लेके चलना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो किस मार्केट के लिए फिट है. वो जो है वो गांव के बच्चों के लिए है, शहरी बच्चों के लिए, उनका एज ग्रुप क्या है, उनका टेस्ट क्या है. सो इंक्रीजिंग डोमेस्टिक डिमांड फॉर टॉयज इन इंडिया इज ऑल्सो बीइंग catalyzed by the country's strong economic growth and rising disposable incomes. Increasing population of children aged between 2 to 8 years old in the country, coupled with high rate of urbanization, are some of the major driving factors to boost the sale revenue of the toy industry in India. It is believed that the top 10 companies in India have the potential expertise and skilled workforce to compete with the leading toy manufacturers in China, who are regarded as the global leaders for toy production. Over the recent years, some of the best Indian toy companies are setting up new manufacturing facilities in industrial zones to scale up their production capacity to fulfill the demand for toys from various parts of the globe. So ये पूरी चीज जो मैं है ये प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में ले रहा हूँ. प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन मतलब कि कहाँ पे स्पेस है काम करने के लिए, इनोवेशन के लिए, और इसके लिए हम क्या करेंगे आगे जाके. बेसिकली ये हम कंपेयर कर सकते हैं. तो ये स्लाइड में आपको इसलिए बताता हूँ कि आप देखिए कि इंडिया का कल्चरल जो डेमोग्राफिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग दूसरे देशों से अलग है. मान लीजिए कि यूएस में कौन कौन सी चीजों में अगर ये जो हम टॉयज बनते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के प्री स्कूल गेम्स एंड पजल्स, डॉल्स एंड एक्सेसरीज लाइक दिस. इन चाइना प्लस टॉयज, राइड ऑन व्हीकल्स, देन गेम्स एंड पजल्स लाइक दिस. नाउ व्हाइल इंडियन टॉयज की हम बात करें तो ये पुरानी डेफिनेशन थी, उसके साथ मैं नई डेफिनेशन भी जोड़ रहा हूँ. 2000 की ये डेफिनेशन है. टॉयज इंडिया में कौन कौन से टॉयज कैटेगराइज होते हैं? टॉयज डेवलप एंड प्रोड्यूस बाय क्राफ्ट पीपल. मेला टॉयज, जब आप कहीं मेले में जाते हो तो कहीं आप टॉयज देखते हो. डायनेमिक फोक टॉयज डेवलप एंड प्रोड्यूस बाय द आर्टिसन, स्किल एंड सेमी स्किल पर्सन. टॉय डेवलप्ड बाय द ले पर्सन और इन्वेंटेड बाय चिल्ड्रन देमसेल्फ फॉर देयर ओन यूनिक पर्पस. एंड फैक्ट्री मेड टॉयज. सो ये कुछ टॉप 5 कंपनीज है कि जो ये टॉय मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है. ये एक बेहतरीन स्लाइड थी कि जो बताती है कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स में नंबर ऑफ एंटरप्राइज कितने हैं. 0 to 9% है तो वो कितने, 82%. कितना एम्प्लॉयमेंट है, 14%. यहाँ पे 10 to 49% स्मॉल इंस्टीट्यूट में 14%. एम्प्लॉयमेंट कितना है, 21%. फाइन. सो ये गेम्स ऑन टॉयज का जो है, आप मतलब हमारा टारगेट क्या है, ये आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कल उठ के अपना खुद का यूनिट या फैक्ट्री भी लगा सकते हैं ये डोमेन में. So that is one of the career option also. This is total revenue of global toy market from 2007 to 2019. You can see it is in billions actually. So आप हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये चीज जो है अगर कोई सीरियसली इसमें इंटरेस्ट लेके काम करेगा तो इसमें क्या प्रॉफिट उसको मिलेगा. अब ये मैंने स्लाइड इसलिए रखी है कि मेरे पास ये तो डेटा है कि कहाँ गैप है, मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि टेस्ट किसका है. तो अर्बन और रूरल पॉपुलेशन कितना है, तो मुझे अगर ये पता चल जाता है तो उसका टेस्ट क्या है मुझे पता चल सकता है कि ये लोग किस टाइप के खिलौना ज्यादा प्रीफर करते हैं. So toy industry in India, the toy industry in India has experienced a steady growth over the recent years, and the revenue of the top toy companies in India has also soared from growing toy product sales to experts and toy market shares.
The growth of the market is mainly driven by the rising population of the under age of 15, जैसा हमने पहले बताया था, increasing personal income and higher toy demand from developed countries in Europe and North America, with more and more leading toy manufacturers implementing modern technology in production and launching new products to meet domestic and international demands. The toy industry in India is forecast to enjoy a bigger growth over the near future. ये चीज आप समझिए, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी सर है, उनका उनका स्टेटमेंट था, अंडर द वोकल फॉर लोकल स्लोगन एंड द आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, द गवर्नमेंट शैल एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज टू tap the potential of the sector. He further suggested using tourism as a tool to promote India's culture, especially in regions which are renowned for handicraft toys. So आप देख सकते हैं, ये हमारा कल्चर है. सो टॉय जो है वो क्या क्या बताता है भारत में? टॉय हमारा कल्चर बताता है, टॉय हमारी देश प्रेम बताता है. कि कोई कोई बच्चे बोलता है कि सर मैं तो फ्रीडम फाइटर पे टॉय बनाऊंगा, शहीद भगत सिंह पे मैं टॉय बनाऊंगा, सुभाष चंद्र बोस पे मैं टॉय बनाऊंगा. फाइन, सो इट रिप्रेजेंट्स योर कल्चर, इट रिप्रेजेंट्स योर फ्रीडम फाइटर. कोई बोलता है कि सर मैं कृषि क्षेत्र में टॉयज बनाऊंगा, हमारे एग्रीकल्चर में क्या क्या टॉयज है वो टाइप के टॉयज बनाऊंगा. सो इंडिया हैज अ रिच लेगेसी इन टॉय मेकिंग. Historically, Indian toys date back to 5,000 years. The excavated toys and dolls found in Harappa and Mohenjo-daro included small carts, dancing women, etc. अभी एक बंदा जो है वो ऐसा बता रहा था कि सर मैं ऐसा करना चाहता हूं कि सूर्य नमस्कार अगर टॉय करता है तो मुझे सूर्य नमस्कार के स्टेप्स याद नहीं रहते हैं, लेकिन जो वो योग और सूर्य नमस्कार करता है, मेरा टॉय जो ऑटोमेशन में करेगा वो चीज मैं उसको सामने देख के करूंगा तो मुझे आ जाएगा. दैट्स फाइन. सो दो चीज कर रहा है, आपका हेल्थ इंप्रूव कर रहा है और वो हमारा योग प्राणायाम को विश्व में फैला रहा है. सो इंडिया हैज अ रिच कल्चर ऑफ स्टोरी टेलिंग थ्रू इट्स टॉयज. Our ancestors have been preserving this culture by making toys which show a perspective of life. The religious influence also led a different set of toys depicting stories from epics like Ramayana and Mahabharata. You can see state-wise what they are doing. Suppose in Gujarat, puppet stuffed toys made of wood and clay toys and figures we are indicating. Students, just a minute, huh? I have one important call, so in between I'll be just coming back actually. So the call from principal sir was there. Sorry for the interruption. Now see, in Madhya Pradesh, Adivasi Gudiya Hastashilp, then teen toys are there. In Maharashtra, wooden toys of Samatwadi are there. In Gujarat, puppet stuffed toys made of wood and clay toys are there. So इससे मैं आपको क्या इंडिकेट करना चाहता हूं कि कहीं कहीं स्टूडेंट्स अगर ये सेशन चालू होने से पहले ये सोच रहे थे कि सर हमें ये सेशन कैसे काम लगेगा. अरे भाई, आप लोग जब साइंस फेयर में जब पार्ट लोगे तो टॉयज बेस्ड ऑन ऑटोमेशन, टॉयज बेस्ड ऑन योर कल्चर, टॉयज बेस्ड ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी, द टॉयज व्हिच आर इंडिकेटिंग सेफ्टी, जस्ट आई जस्ट गिवन एन एग्जांपल ऑफ बर्गर अलार्म. सो ये सब चीजें आपको उसमें जो आपका जो साइंस और इनोवेशन में बहुत आगे लेके जाएगा. So Udaipur is a big center of wooden toys. The craftsmen use the local wood dudhya, which is soft and can be finally chiseled and shaped. The toys are lacquered and polished with levels of flowering catex to give them a better look and increase their life. Basi in Chittorgarh district is another noted center for wooden toys where the entire village is engaged in wooden carving and in making wooden products. ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ कि कोई अगर wooden toys में काम करता है तो know your competitors, कि राजस्थान में ये कितने में बना रहे हैं, वो मार्केट में कब सेल करेंगे, क्या ये गुजरात में उसको ला रही है प्रोडक्ट को. सेम वे आई हैव पुट द सेकंड स्लाइड फॉर गुजरात ट्रेडिशनल क्ले एंड टेराकोटा टॉयज, द कंटेंशनल क्ले पॉट्स टू अ वैरायटी ऑफ क्ले. सो ये देखिए बढ़िया क्ले में से सब चीजें बनाई है. एंड टॉयज लाइक हॉर्सेस, काउज, बुल्स, बफेलोज आर द आइटम्स व्हिच आर वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंडियन पोल्ट्री. इन गुजरात ट्राइब्स इन द डांस मेक एंड वर्शिप देयर ओन क्ले गॉड्स. सो people also worship this toys because वो भगवान की तरह मानते हैं. तो हम भगवान की मूर्ति भी बढ़िया बना सकते हैं इसमें से, और उसमें से वो हमें कुछ संदेश देते हैं, वो भी हम कर सकते हैं. फाइन.
मान लीजिए कि हमने एक मूर्ति बनाई है जिसमें मैं मूर्ति के सामने बैठ के बताता हूँ जय श्री राम, तो सामने से वो बता सकते हैं, मुझे मैसेज आता है कि वत्स आप जीते रहो। फाइन। तो ऐसा भी कोई कोई इनोवेशन कर सकता है। सो बहुत सारे जो टॉयज में हम इनोवेशन कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इंडियन टॉय इंडस्ट्रीज, हाउ बिग इज द इंडियन टॉय मार्केट साइज, what are the factors driving the India's toy market growth, who are the top 10 companies in India, what are the future trends of India's toy industry and Indian toy मार्केट ओवरव्यू 2020, ये सब चीजें हमें करना पड़ेगा। अगर हम कहीं पिच डेक के लिए जा रहे हैं तो ये जवाब हमारे पास होने चाहिए। सो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है कि एज अ चाइल्ड वाइज और एज वाइज आपको देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे पेनिट्रेट करना चाहते हैं, डिमांड क्या है। नाउ फ्रॉम बेस्ट, जैसे ये गोवर्धन भाई और हितेश सर के साथ हम एक ये डोमेन में हमने स्टार्टअप सृजन में अप्लाई किया है। तो ये बेस्ट फ्रॉम बेस्ट क्या है, तो हम वेस्ट मटेरियल में से बेस्ट टॉयज कैसे बना सकते हैं, वो जो ड्यूरेबल भी हो, जो चल रहा है। सो वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स, पीसीस ऑफ प्लाई, बेसिक मेटल्स, फेविकॉल, ऑयल कलर, पेंट ब्रश, मिसलेनियस आइटम। सो अबव आइटम्स आर यूज्ड टू मेक रोबस्ट, गुड लुकिंग, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव टॉयज। फाइन। So these are the materials which are used, maybe for chemical toys, maybe for metal toys, maybe which is made of plastic toys. So I have also mentioned the source from where I have taken it. So in general, these are the raw materials which can be used. There are many actually. I'll be sending some literature to all the students after the session. So rubber and plastic products, other non-metallic products, basic metals, electrical energy based research and development services, like so all these textile based products are there. So all those things are mentioned here. हेलो मोकरिया सर, हेलो। हेलो। हाँ सर, जस्ट प्रिंसिपल सरનો કોલ હતો કેટલા વાગે એટલા માટે. Okay, 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 sir. I thought that there might be some ના 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 technical ના, issue. ફાઇન ફાઇન ફાઇન. Okay, sir. So again I am coming back to the slide. So this is basically market segmentation by category: infant and preschool dolls, games and puzzles, constructions, outdoor and sports, and others. This is target market and opportunity market segmentation by distribution channels: retail, specialty stores. So basically, I am going with retail or specialty stores or mass market players or other stores. We can go like this. We can see that whether I should go for online marketing, whether I could go for retail selling, whether I should go for mass market players, that I can be doing like that. The major vendors in the global toy market: Lego Group, Mattel, Hasbro, Bandai Namco. So other prominent vendors in the global toy market are also mentioned in the slide. Same, this was the business model canvas, which was explained by Professor R.V. Prajapati in the session. Now, what are the key partners? Fine.
what is the key activity? Idea generation, raw material collection, rough sketch implementation, product manufacturing, identifying the market segments, understanding competitors, understanding promotion of the product, value proposition, understand the customer need and satisfaction, keeping emphasis on quality of the product, penetrating different markets to different segment, like effective delivery and customer feedback. Then customer relation, how we will maintain a relation from customer while taking effective feedback. Channels, which channels I'll be operating? Retail, special store, mass market players, online, other stores. Then cost structure, cost of raw material, cost of land for manufacturing premises, what will be my different types of cost is, wages to the person, cost of promotion of product, website development, revenue streams, fixed pricing, discount of appropriate person with appropriate scheme, getting orders through e-booking. So all these things I have to mention in my BMC, that is known as a business model canvas. In recent years, cities like Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, and Pune have become most important manufacturing sites of Indian toy industry. Among the local manufacturers in Indian toy, about 59% focus on low-cost, unbranded toys. Hence, they find it difficult to fight with international brands. The Indian toy industry are facing stiff competition from the unbranded Chinese imports, which are being sold at the cheaper price. So these are some of the toys which is made by Gordon Bhai that I want to show you here. The price obviously it is put at the higher side. Once we go for mass production, this is very low. It will be very low and reasonable price. Trump car is there, truck is there. So these type of innovative toys are made by Gordon Bhai. Train is there, bullock cart is there, ईगल जो वो बनाते हैं वो, बॉय कार जो उन्होंने बनाया वो फाइन. So this is basically a budget pan here, and these are some equipments which is with Hitesh sir and Gordon Bhai, and some equipment they want to purchase in future. So before carry forwarding this thing, I will be inviting Hitesh sir to have a word. Sir, आप अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं, एंड प्लीज टेल अस कि ये जो हमने बनाया है कि इतने इक्विपमेंट आपके पास है अभी, और आप आगे कैसे सोच रहे हो? ऐसा है कि अगर वुडन में हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए अगर फिनिशिंग चाहिए, अगर कोई मटेरियल है तो उसके लिए मशीनरी की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि अगर हैंडमेड से अगर आप बनाया जाता है तो फिनिशिंग नहीं आएगा. इसलिए अगर फिनिशिंग चाहिए तो उसके लिए हमें मशीनरी ऑब्वियसली यूज करनी पड़ेगी. और मशीनरी की जो कॉस्टिंग है अराउंड 20,000 से स्टार्ट होता है और अराउंड 50,000 60,000 इस तरह का उसका प्राइस रहता है. तो हमारे पास बेसिक मशीनरी है जिससे हम कटिंग करते हैं, उसका फिनिशिंग अप्लाई करते हैं. रोटरिंग रहेगा तो रोटरिंग करते हैं, उसमें फिनिशिंग अप्लाई करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो क्या उसमें चमक आती है, और हाथ में रहेगा तो स्मूथनेस दिखेगा. राइट, इस तरह की मशीनरी की रिक्वायरमेंट रहती है. और हितेश सर, मुझे ये पूछना था, लोग जाना भी चाहते हैं कि टेबल सॉ से लेके जो दूसरे अलग अलग टाइप के 100 मशीन है, स्क्रॉल सॉ है, फाइन, बेंच ग्राइंडर है या बेंच सेंटर है, वुड टर्निंग मशीन है, ये सब चीजें इफेक्टिव शेपिंग में कैसे काम लगती है? हाउ इट विल बी यूजफुल? हाँ, ये सबका अगर मशीनरी का आप नाम देखोगे तो सबका काम भी अलग अलग है, किसी का भी काम सेम नहीं है. हर एक का काम अलग अलग है. जैसे पहला मशीन है टेबल सो है, सर्कुलर टेबल सो, जिसमें हम लकड़ी को कट करते हैं, और लकड़ी की जो शेप है उसके हिसाब से जितने आपके रिक्वायरमेंट है, डायमेंशन जितना आपको चाहिए, कितना उसका विड्थ चाहिए, उसके हिसाब से हमें मशीनरी की सिलेक्शन करके उसमें कटिंग करते हैं. सेकंड जो है सर्कुलर शो है, जिसके अंदर हमें मशीन को इजीली हम कट कर सकते हैं लाइक शेप के हिसाब से. और तीसरा जो है मशीन जिसमें हम लाइक थिकनेस रहेगी, समझो 6 mm है क्या 7 mm है, अगर उसमें राउंड कुछ कट करना है, लाइक कोई सर्कुलर है, कोई राउंड है, कोई अलग अलग शेप है, तो उसके लिए हमें थर्ड जो मशीन यहाँ पे दिखा है वो हमें यूज करना पड़ेगा. तो हर एक का मशीन अलग अलग के उसका फंक्शनैलिटी है, और जिसकी रिक्वायरमेंट आपको कटिंग के कौन सा कटिंग में करना है, कटिंग साइज क्या है, राउंड शेप में है, उस हिसाब से हम यूज करना है. लास्ट वाला जो मशीन है वो है ड्रिलिंग मशीन है. अब ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है कि हम अगर हैंड से अगर लाइक ड्रिलिंग मशीन हाथ से हम कट करेंगे, लाइक होल करेंगे, तो क्या होगा, प्रॉपर शेप में नहीं आएगा, प्रॉपर ट्रायंगल या फिर जो भी हमारा सीधा रह जाएगा नहीं हमारा ड्रिल बिट. तो प्रॉपर वे में ड्रिल करने के लिए हमें ये ड्रिल मशीन चाहिए. राइट, अदरवाइज फिर वो प्रॉपर ड्रिल नहीं होगा. तो इस तरह की मशीन है जिसमें हमें प्रॉपर शेप देना है, प्रॉपर होल करना है, प्रॉपर कट करना है, उसके लिए अलग अलग मशीनरी यूज करनी पड़ेगी. फाइन.
सर और कुछ बात जानना चाहते हैं मेरे प्रेजेंटेशन में, यहाँ से मेरी इच्छा थी कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। दिस आर बेसिकली द रेफरेंसेस ऑफ व्हिच आई हैव टेकन फॉर प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन, एंड दिस आर सम वीडियोस दैट विल बी सर्कुलेट टू द स्टूडेंट्स लेटर ऑन। नाउ मुझे ये पूछना था कि पिताजी को ये सब चीजें जो है टॉयज इनोवेशन में इंटरेस्ट जो है वो कब से चालू हुआ, और उन्होंने गोवर्धन भाई ने ये सब चीजें कब से करना चालू की? एक्चुअली बाय बॉर्न ही जब स्कूल में पढ़ रहे थे 8th स्टैंडर्ड में ही, पापा जूनागढ़ में की स्कूल में पढ़े थे। वहाँ पे डिफेंडम की स्कूल है, बहरामुंगी की स्कूल है, जहाँ पे उन्होंने 8 तक पढ़ा हुआ है। और 8 तक के बाद एक्चुअली उनका इंटरेस्ट पेंटिंग में ज़्यादा था। जब स्कूल में थे तो वो पेंटिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, पढ़ने में कम ध्यान दे रहे थे। तो उनके बाद जब तब घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, उनको थोड़ा आगे कमाना था, तो 8वीं स्टैंडर्ड से ही फिर उन्होंने कमाना स्टार्ट कर दिया। तो 8वीं स्टैंडर्ड से पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। वाटर कलर जो रहते हैं उसको पेंटिंग बना रहे थे। किसी अगर कोई पर्सन सामने बैठा है तो उनका पूरा स्केच कर रहे थे। 8वीं स्टैंडर्ड से बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़े, उनका पेंटिंग का जो तरीका था वो चेंज किया। वाटर कलर से फिर ऑयल कलर में आ गए। ऑयल कलर के बाद फिर आगे जो होता है ना, गेहूं की सली होती है, तो गेहूं की सली से वो फोटो बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया, बाम्बू होता है, बाम्बू जो स्टिक होती है, बाम्बू से पूरा कट करके स्टिक बनाते हैं, और स्टिक से हमने एक फोटो फ्रेम बनाया। अभी मेरे पास एक फोटो फ्रेम पड़ा हुआ है जो अराउंड 30 साल या 35 साल पुराना है। मेरे बाई बॉन्ड पहले ही बनाया गया है, तो भी अभी हमें घर पे पड़ा हुआ है। दूसरा है, एक बहुत ही बड़ा एक महाभारत का फोटो है, पेंटिंग है, वो भी अराउंड मेरे जन्म से पहले बनाया गया है। तो ऐसे ही वुडन से उन्होंने पूरा मटेरियल मतलब क्राफ्ट करके बनाया है, जो ऐसा लगता है जैसे कि मशीनरी में बनाया गया है, बट उन्होंने हैंड से ही किया हुआ पूरा। तो डिपेंड करता है कि आपकी हैंड की क्वालिटी, आप हैंड से कैसे बनाते हो, आप कला है उसके हिसाब से आप अगर वुडन या फिर कुछ आइटम बना क्राफ्ट बना रहे हो तो उसमें पॉसिबल है। उसमें फिर आपको मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सवाल हितेश सर आपके लिए है कि ये जो टॉय है इसमें अलग अलग तरह से ऑटोमेशन का या वॉइस का वगैरह क्या स्कोप रहता है जिसमें टॉयज बेहतरीन हो सके और हम चाइनीज मार्केट को वगैरह को कम्पीट कर सके? हाँ, अभी मार्केट में कैसा होता है कि लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि कोई चाहता है कि मुझे तो प्लास्टिक टॉयज लेना है, कोई चाहता है कि मुझे वुडन टॉयज लेना है, कोई बोलता है कि नहीं मुझे तो दोनों कॉम्बिनेशन वाला टॉयज मुझे लेना है। क्योंकि क्या होता है कि प्लास्टिक टॉय में दो टाइप का रहता है मटेरियल। एक होता है लो क्वालिटी का मटेरियल, उसका कॉस्ट भी बहुत कम रहता है, और हाई क्वालिटी वाला आपने सुना होगा नाम, अनब्रेकेबल टॉयज, जो मार्केट में भी बहुत चल रहा है। अब आप दुकान में जाओगे तो ऐसे ही बोलेगा, सर ये ले लो, ये अनब्रेकेबल टॉयज है, ये आपका टूट जाएगा, ये टूटेगा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो अनब्रेकेबल टॉयज है वो बहुत थिकनेस बहुत मतलब जाड़ी होती है, थिकनेस, और उसका रिसाइकलिंग बहुत प्रॉब्लम होता है। रिसाइकलिंग प्लांट बहुत कम है हमारे इंडिया में, और उसका मटेरियल को रिसाइकल करने के लिए बहुत ही बड़ा प्लांट चाहिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वो रिसाइकल, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है। रिसाइकल होता है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स रिसाइकल है। तो इस तरह की प्लास्टिक मटेरियल को यूज करके वापस रिसाइकल करके वापस उसको बना सकते हैं। लेकिन अगर समझो कि कोई प्लास्टिक का कोई टॉयज अगर टूट गया है तो वापस उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। अगर उसके सामने अगर वुडन का टॉयज है, अगर टूट गया है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं इजीली। फेविकॉल है, फेविस्टिक है, फेविक्विक है, इसे यूज करके हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के टॉयज को हम एक मार्केट में बना सकते हैं। दूसरा रहता है कॉम्बिनेशन वाला, प्लास्टिक भी रहेगा और वुडन भी रहेगा, तो दोनों कॉम्बिनेशन वाला मेटल है, इस तरह के टॉयज को हम बना सकते हैं। टॉय के अलावा गोवर्धन भाई के और क्या क्या इंटरेस्ट रहे लाइफ में? हाँ, टॉय के अलावा पापा मतलब और बनाते हैं, जैसे कि बाम्बू की स्टिक से एक एफिल टावर बना के रखा हुआ है। एफिल टावर जिसमें मल्टीपल लाइट्स है, और अराउंड 6 फीट का हाइट का एफिल टावर है, और वो भी असेंबल भी हो सकता है। डीएसएमएल अगर किसी को भेजना है, कुरियर करना है, तो आप इजीली किसी कुरियर कर सकते हो। तो डीएसएमएल कर दो, वापस असेंबल कर दो। दूसरा है नाइट लैम्प है, टेबल लैम्प है, मोबाइल स्टैंड है, देन झूला है, बहुत सारी मटेरियल, पूरा वाटरफॉल भी है जिसमें पानी ऑटोमेटिक घूमता रहेगा, पानी ऊपर से नीचे गिरता रहेगा, आवाज आती रहेगी। तो बच्चे लोग को ये सब आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता है कि पानी का आवाज आ रहा है। तो इस तरह का सब बहुत सारे ऐसे टॉयज सब बना के रखा हुआ है। टॉयज भी बनाए जिसमें आपने बताया वही टॉयज सबको मतलब बनाते हैं। अभी दूसरा झूला भी बना के रखा हुआ है, झूला मतलब जब मेरी बेटी हुई थी तभी पापा ने इसे बनाना स्टार्ट किया, ये सब टॉयज वगैरह।
तो काफी उनको आइडिया भी है, बहुत सारा सब टॉयज को उन्होंने स्केच भी करके रखा हुआ है। तो आप आए थे तो आपने दिखा है कि नहीं ये तो आगे जाके बहुत अच्छा हो सकता है, तो पापा ने तब से पूरा स्केच भी बना के रखा हुआ है टॉयज का। तो काफी आइडियाज पापा के पास है। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो अगर हम उसके इंक्लूड करते हैं, लाइक ऑटोमेटिक करते हैं कुछ, तो वो बहुत अच्छा रहेगा कि लोगों के क्या मूवमेंट चाहिए, बच्चे लोग को मूवमेंट अच्छा लगता है। अगर एक जगह पे अगर स्टेडी रहा है तो बच्चे लोग को मजा नहीं आती है। तो बच्चे लोग को क्या चाहिए कि लाइक एडवांस कुछ घूमता हो, फिरता हो, बोलता हो। अगर हम बोले भाई टर्न अराउंड तो घूमेगा, कि आगे जाओ पीछे जाओ, तो हमें वॉइस अगर काम कर रहा है तो बच्चे लोग को अच्छा लगता है। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ऑटोमेटिक जो हम बोलते हैं ऑटोमेशन, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके। बाहर बाहर से अभी आई हर्ड लाइक कि आपको कोई कुछ यूएसए या बाहर के मार्केट से भी थोड़ा कुछ टॉयज के लिए आपको वहां से कुछ भेजने के लिए बोला गया था, तो हाँ उनका संपर्क आपके साथ कैसे होता है और आप कैसे डील करते हो? जी, वो तो एक्चुअली हमारे फ्रेंड सर्कल में से ही बात हुआ था। एक्चुअली पापा का इतना कुछ वो है नहीं, बस पापा का एक शौक है जो पेंटिंग कर रहे थे। उसमें पापा ने जो पेंटिंग बनाया था वो गेहूं की सली से पेंटिंग बनाया था। और उनको एक्चुअली सैंपल बना के छोटा बना हुआ था। और वो जो हमारे अंकल हैं उनके जो फ्रेंड है वो आए थे, देखा, और उन्होंने बताया कि नहीं मुझे तो ऐसा पेंटिंग बनाना है। और एक्चुअली उन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह पे सर्च किया कैसा कोई पेंटिंग बनाता है कि नहीं बनाता है। और अराउंड 1 या 2 महीने के बाद वापस आए, बोला कि ऐसे कोई मार्केट में है नहीं, हमें आपके पास ही बनाना है और हमें बना के दो। तो तब फिर पापा ने वो पेंटिंग बनाया गेहूं की सली से। गेहूं की सली होती है, उसको फ्लैट करते हैं और बहुत सारा उसका कटिंग करके, और माइक्रो लेवल कटिंग होता है। और हम अगर कटिंग करने जाएंगे तो हमें तो पॉसिबल नहीं है, तो ये बहुत ही हार्ड है। ऐसे कटिंग करना, अगर हम कटिंग करना है टूट जाएगा। लेकिन पापा के हाथ में कला है, बाय गॉड जो उनको दिया है, गिफ्ट दिया है। और वो लोग पापा कट करते 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 बहुत सारा मल्टीपल पीसेस कट करके फिर पेंटिंग बना के बहुत बड़ा पेंटिंग बनाया। अराउंड 6 फीट हाइट का और 3.5 फीट का उसका चौड़ाई है। और ऐसा उन्होंने फोटो पेंटिंग बनाया था और फिर उन्होंने कुरियर कर दिया। तो कुरियर तो उन्होंने खुद ही किया था, बस हमने उनको बना के उनको दे दिया। बहुत बढ़िया। और सर, भविष्य में अ, ये टॉय मैन्युफैक्चरिंग में आपका और पिताजी का आप लोग क्या करने वाले हो, वो थोड़ा कुछ शेयर कीजिए। अभी तो इतना कुछ सोचा नहीं है। जो भी आगे कुछ होगा तो ठीक है, इसको आगे मतलब कर सकते हैं। बट ये है कि अगर टॉय का अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर वे में हो, मशीनरी को इंक्लूड करके और फिनिशिंग इंक्लूड करके, तो फिर उसका मार्केट ज़्यादा हो सकता है। अदरवाइज हम हैंडमेड से बनाएंगे तो उसका क्वालिटी, उसका मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो मशीनरी तो ऑलवेज इसको अंदर इंक्लूड करनी ही पड़ेगी। तब जाके हम प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, और तब जाके मार्केट में इसका वैल्यू दिखेगी, और तब जाके लोग हमारे इंडियन प्रोडक्ट को ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन। सो इन 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 शॉर्ट कि अगर कुछ बढ़िया स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी या मिलती है, हाँ तो जैसे हम लोग अभी एक टीम में साथ में काम कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर सम वेरी गुड गुड अपॉर्चुनिटी। वैसे हमारे जो स्कूल स्टूडेंट्स या टीचर्स जो देख रहे हैं, वो भी साइंस फेयर वगैरह में ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। हाँ जी, तो फिर तो ये तो बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विजय सर, शायद नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंडिंग ऑफ द सेशन। सो to the school students and teachers, dear all students and respected teachers, we are very thankful actually that you participated in this boot camp today. Due to some technical issues, the YouTube live was not there, but immediately this recording will be put in all the groups. तो जब आप सेशन ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो you will be blessed to meet with Gordon bhai, with Hitesh bhai, those who are working in this domain. Second, आपको यहाँ पे जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको इनोवेटिव प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वैसे हम 350 मिनिमम प्रोजेक्ट जो उसकी जो पीडीएफ जो है उसके कंसेप्ट वाली, वो भी हम आपके ग्रुप में आज शेयर कर रहे हैं। सो दैट विल बी आल्सो यूजफुल टू यू। आप जब ये देखेंगे तब आपको उसमें मजा आएगा, वो आपको भविष्य में काम लगेगा। Once again, we are thankful to respected principal sir V.S. Purani sir, the DO office. With joint collaboration, we are doing this innovative boot camp. This was the last session, and immediately after this recorded session is put in the group, the link will be put in the group. जो पार्टिसिपेशन लिंक है वो आपके ग्रुप में हम रखेंगे, और वहाँ से जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है
उनको कुछ 7 सेशन के टोटल 14 क्वेश्चन है और 6 फीडबैक वाले सवाल है, तो वो उनको उनका आंसर देना है और हमारे साइड से हम वो वेरीफाई करेंगे एंड देन द सर्टिफिकेट जनरेशन प्रोसेस विल बी थ्रू वंस वी चेक इट. So this how it will work. I thank one and all who have supported this event, SSIP Bootcamp. Little bit here and there technical disruptions comes, but we have a backup plan of recording and we'll put in the group. So once again, thank you Hitesh sir, thank you Gordon bhai, thank you my team SSIP, team NISP, and all those who have supported during this bootcamp, jointly coordinated by JEC Valsad and District Education Office Valsad. So I'll be just ending the session, Mr. sir, and you are requested to put record it immediately. You are requested to give the recording immediately so that I can put in the group, sir. Fine. Any final thought by Malan sir and Mr. sir? No sir. Fine. So I'll be ending the session with a high note, and obviously it will be very useful. So આપણે જેને કીધું છે કે તમને YouTube નું રેકોર્ડિંગ આપીશું, તો આપણે તાત્કાલિક સર લિંક આપો તો આપણે એમને બધાને રેકોર્ડિંગ આપીએ અત્યારે. ફાઇન. જય ભારત, જય હિન્દ. આપણે આવનારા સમયમાં આશા રાખીએ કે સ્ટુડન્ટ્સ જે છે એ આવા ટોય ઇનોવેશન ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ સારું કામ કરે, અને આપને ક્યારે મદદ માટે જરૂર હોય તો અમારું એસએસઆઈપીની ટીમ પણ છે. હવે તો આપણી સાથે ગોવર્ધનભાઈ પણ છે, હિતેશભાઈ પણ છે, અને ભવિષ્યમાં આ પ્રકારના સારા કાર્યક્રમો એસએસઆઈપીમાં અમે આપની સમક્ષ લઈ આવશું. ફરી આવતા વર્ષે આપણે આ પ્રકારના કોઈ એસએસઆઈપી બુટ કેમ્પ માટે મળીશું. સો બધાને મારા સ્નેહ, વડીલોને મારા આદર પ્રણામ, અને એ સાથે આપણે અહીંયા આ સેશનની અને એસએસઆઈપી બુટ કેમ્પની પૂર્ણાહુતિ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ વન એન્ડ ઓલ.